آج بتاریخ 15 نومبر بروز جمعہ ایک کانفرنس رکھی گئی جس کے اندر حضرت مفتی خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم، مفتی اول مہڈواڑہ، ان کی صدارت میں اور ان کی ایما پر ایک کانفرنس رکھی گئی تھی، لیکن کسی وجہ سے مفتی صاحب نہ پہنچتے ہوئے انہوں نے اپنا پیغام اس طرح سے یہاں پر بھیجا جس کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ ناندیڑ شہر کے 200 سے زائد تمام مکاتب فکر کے اکابرین، علماء کرام، مفتیان اعظام، قائم مساجد و دیگر ملی مذہبی تنظیموں اور دونوں جمعیت کے ذمہ داران نے دکشن کے امیدوار فاروق احمد صاحب کی تائید و حمایت کا اعلان کیا، اور یہ اعلان 13 نومبر 2024 کو صبح 11 سے 2 بجے تک جو MGR گارڈن میں پروگرام رکھا گیا تھا، مشورے کے لیے بلایا گیا تھا، اس میں یہ طے کیا گیا، اور تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ کس کا اعلان کیا جائے۔ تمام علماء کرام اپنی اپنی رائے دی اور مختلف رائے آئی۔ آنے کے بعد اس بات پر سب متفق ہوئے کہ 13 تاریخ کو 6 بجے حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم، جو تقریباً 1 سال سے یا 6 مہینے سے زائد وہ ناندیڑ کا نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر کا بلکہ پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے تھے، اور وہ سرچ کر رہے تھے کہ کہاں پر کس کو بہمت ہے اور کس کی تائید میں لوگ ہیں، اس کا ڈاٹا ان کے پاس تھا۔ مختلف تنظیموں سے انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد میں ایک فہرست جاری کرنے والے تھے 6 بجے تک 13 تاریخ کو۔ تمام علماء کرام نے باتفاق رائے حضرت مفتی خلیل الرحمن صاحب کو اپنا صدر منتخب کیا، اور ان کی صدارت میں سب بایک آواز یہ کہا کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب جس شخصیت کا بھی، جس امیدوار کا بھی نام لیں گے اور اس کا ودھان سبھا کے تعلق سے جس کا بھی نام آئے گا، اس یادی میں جس کا بھی نام رہے گا، اس نام پر ہم مہر لگائیں گے، اس پر متفق ہوں گے۔ اور دعا ہوئی اور تمام لوگ چلے گئے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ 4 بجے کے بعد فوراً ہی بامبے میں حضرت نے ایک کانفرنس کی۔ اس کانفرنس کے اندر مختلف تنظیموں کے مختلف نام کا اعلان کیا گیا۔ الحمدللہ اس میں دکشن سے یعنی ناندیڑ دکشن سے فاروق احمد صاحب کا بھی اعلان ہوا۔ ہم تمام علماء کرام اس وقت تقریباً 150 سے 200 علماء کرام موجود تھے، جس کے اندر حضرت مولانا عثمان صاحب جامعۃ العلماء محمد مدنی کے صدر، حضرت مولانا حافظ عبدالحافظ صاحب ارشد مدنی کے صدر، اور اسی طریقے سے مختلف تنظیموں کے سربراہان موجود تھے، ہمارے رفقا موجود تھے، اور تمام مل کر اس میں خاص کر حضرت مولانا ایوب صاحب، اور اس سے پہلے مولانا صاحب عبداللہ صاحب سے بھی میٹنگ کی گئی، اس سے پہلے رات میں 1 دن پہلے مفتی شاقی خالد صاحب ان سے بھی رائے لی گئی۔ تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب جس کا بھی نام کا خلاصہ کریں گے اس پر ہم متفق ہیں۔ تو میں تمام دکشن کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ گیس سلنڈر جو ان کا جو ہے نشانی ہے، چہن ان کے، اس پر جو ہے زیادہ زیادہ ووٹنگ کرائے اور ان کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرے۔ ایسی میں حضرت مفتی خلیل الرحمن صاحب کے حکم پر اعلان کرتا ہوں کہ 20 تاریخ کو زیادہ زیادہ ووٹنگ کرائے، اور کوئی شخص گھر پہ نہ رہے، جو باہر ہے تو اس کو بلائے، اپنے پیسے سے خرچ کر کے جو ہے 100% ووٹنگ کرانے کی کوشش کرے۔ اور یہ اعلان کسی کے خلاف میں نہیں ہے، صرف امت کو بچانا ہے غلط اعلانات سے، اور ایک رہبر کے پیچھے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہونا ہے تاکہ انتشار نہ ہو۔ اور انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا
उस पर तकरीबन मराठवाड़े से मुस्बत पैगामात आ रहे हैं, मुस्बत उसकी सोच आ रही है और एक बहुत बड़ा मसला उन्होंने हल किया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि तमाम लोग ये जानते हैं कि आज से 2 दिन कबल जो है हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के ताल्लुक से जो बयान आया है, उस पर जो है न जाने कैसे कैसे जो है अवाम की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं। मैं सबसे पहले जो है मैं इस पर बात करूंगा। वो लोग जो है ये भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि उलमाए किराम जो है ये हमारे सर के ताज है, ये वरसतुल अंबिया है, ये नबियों के वारिस है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि आज से कुछ महीने कबल पहले जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, जिसमें मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी की तरफ से ये बार बार जो है नारा लगाया जा रहा था, अब की बार 400 पार। आपने सबने देखा कि अब की बार 400 पार जो मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो नारा लगाया जा रहा था, उस नारे को रोकने में अगर सबसे अहम अगर किसी ने किरदार निभाया है तो वह उलमाए किराम का था। जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे उनको 300 के अंदर ही जो है समेटने में जिसका सबसे अहम किरदार रहा वो उलमाए किराम रहे। तो आज जो लोग मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ताल्लुक से नाजेबा जो कलमात या दिगर, अब जो है शहर की बात ले लो अपने नांदेड़ के अंदर, जैसा कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने उत्तर से अली जनाब अब्दुल सत्तार साहब के ताल्लुक से जो है मतलब सपोर्ट का, तायद का ऐलान किया, हम उसका इस्तेकबाल किया। दक्षिण से अली जनाब फारूक अहमद साहब जो कि वंचित के जो है मतलब है, आपने उनका ऐलान किया। तो अब जो है ये तमाम लोगों से ये हमारी गुजारिश है कि भाई जिस तरीके से आपने उत्तर में, आपने जो है जिस तरीके से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने उत्तर में जो है अब्दुल सत्तार साहब के तायद का ऐलान किया, सबने लब्बैक कहा, लेकिन जैसे ही दक्षिण में फारूक अहमद साहब का नाम आया तो जो है पूरे शहर में जो है एक अलग ही एक माहौल जो है मतलब खराब हो गया। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो अवाम में है, बिलखुसूस आप लोग जो है ये हक नहीं रखते कि उलमाए किराम अगर जो है कोई अगर बात कह रहे हैं तो ये कोई जज्बाती फैसला या कोई जज्बाती बयान नहीं होता। हम और आप हैं कि जो जज्बात में आके कभी नारे लगा देते हैं या कभी जज्बात में आके किसी के भी हक में कोई भी बात कह देते। मौलाना सज्जाद नोमानी जैसी शख्सियत जिसकी निगाह सिर्फ हमारे गलियों या हमारे दक्षिण के हद तक महदूद नहीं है, मौलाना सज्जाद नोमानी ये ऐसी शख्सियत है कि जिसकी निगाह पूरे हिंदुस्तान पर है। आप पूरे हिंदुस्तान का जायजा ले रहे हैं और कहां पर किसके लिए क्या बेहतर है उसकी आप तजवीज फरमा रहे हैं। तो ऐसे में होना ये चाहिए कि जो भी मतलब अहले खैर हजरात है और जो भी दानिश्वर है और जो भी समझ बूझ रखते हैं, तो वो जिस तरीके से और दिगर जगहों पर, जैसा कि उत्तर की बात करूंगा, उत्तर में जिस तरीके से अब्दुल सत्तार साहब के नाम की तायद का आपने इस्तेकबाल किया, ऐसे ही जो है दक्षिण में भी फारूक अहमद साहब के नाम की तायद का जो है इस्तेकबाल करना चाहिए था। मगर आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, कल जो है उसी ज़िमन में व्हाइट हाउस के अंदर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के जो है बयान के मुखालिफ में जो है उलमाए किराम को, चंद उलमाए किराम को जमा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसके जरिए ये बताया गया कि नांदेड़ के तमाम उलमा, नांदेड़ शहर के दक्षिण के तमाम उलमा, उसमें कुछ फिगर भी बताया गया 200 या कुछ तो भी। तो मैं आपको बता दूं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के बयान आने से पहले नांदेड़ के एमजीआर गार्डन में उलमाए किराम जो कि नांदेड़ के, उनकी एक मीटिंग हो चुकी थी। उस मीटिंग के अंदर जबकि जो एक साहब का जो है सोफे पे बैठकर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वो खुद उस मीटिंग के अंदर थे। 150 से जायद उलमाए किराम जो है एमजीआर गार्डन 13 तारीख को 11 बजे जो है वहां पर मौजूद थे, जिसमें मैं खुद था, हजरत थे। और उस प्रोग्राम और उस मीटिंग की क़यादत जो है मुफ्ती मराठवाड़ा मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब जो है फरमा रहे थे। तो उस मीटिंग के अंदर, उस मीटिंग में तमाम की तमाम उलमाए किराम के मुत्तफिका तौर पर यह बात तय हुई थी कि उस वक्त जो है वहां पर जैसे नांदेड़ का जो माहौल अभी है कि भाई इधर से दक्षिण से जो है 2 उम्मीदवार है, हजरत अली जनाब जो है एमआईएम से भी है और वंचित से भी है, दोनों भी मुस्लिम है। तो किसको वोट करना चाहिए, किसके ताल्लुक से वोटिंग करना चाहिए, तो इस पर जो है उलमाए किराम अपना किरदार अदा करे। तो इस
मुआफिकत से जो है वो मीटिंग रखी गई थी मुफ्ती खलील रहमान साहब की सदारत में। तो वहां पर ये मुत्तफिका तौर पर ये तय हुआ था कि यहाँ पर हम लोग जो है किसी का भी नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे। मीटिंग के अंदर जो है जितने भी उलमा किराम आए थे वो सब ने ये तय किया कि यहाँ पर हम किसी का भी नाम तय नहीं करेंगे। 2 बजे से लेकर 6 बजे 5 बजे तक जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप जिसके नाम की तायद करेंगे बस उसी पर सबका मुत्तफिक रहेगा और सबका इत्तेफा रहेगा। ये बात वहां से तय हुई थी और ये बात तय होने के बाद ही वो जो है मीटिंग वहां से बर्खास्त हो गई थी। मगर न जाने क्यों हजरत का जो है मतलब जो है जवाब आया उधर से ताइद आई फारूक अहमद साहब के ताल्लुक से, तो वहां पर जो है जितने लोग थे उसमें से कुछ लोग जो है बिखर मुकर गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो जो है जिस तरीके से उन्होंने ये जो है अब ये जो मामला है दक्षिण के ताल्लुक से, तो ये ऐसे ही मतलब जज्बात में उन्होंने फैसला नहीं किया। उनके पास यहाँ से कुछ रिपोर्टें गई हैं, उनके पास यहाँ से कुछ जो है मामला गए हैं लोगों के, तब जाकर के उन्होंने जो है इस पर फैसला किया है। तो मैं तमाम की तमाम अहलियाने नांदेड़ शहर और बिलखुसूस दक्षिण के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने दक्षिण से अली जनाब फारूक अहमद साहब की तायद का ऐलान किया है, तो तमाम की तमाम उलमाए किराम वो चाहे किसी भी मकतबे फिक्र के हो, चाहे वो देवबंदी हो कि अहले सुन्नत बरेलवी हो या दिगर जितने भी मकातिब फिक्र के हैं, अक्सरियत जो है उलमाए किराम की फारूक अहमद साहब की तायद में है और वो जो है फारूक अहमद साहब की तरफ ही जो है वो इंशाअल्लाह सबका रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह 13 तारीख के दिन जो मीटिंग हुई थी, 13 तारीख के दिन MGR में जो मीटिंग हुई थी उसमें तमाम ही नांदेड़ के उलमा इकराम मौजूद थे। खुद वालिद मोहतरम के सदारत में ही हुई हो और हमारे मुफ्ती शफी साहब और मौलाना फिरोज साहब, ये दोनों हजरात भी उसमें बहुत अंदर जो है तो मुतहर्रिक थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो फैसला हुआ कि भाई मौलाना सज्जाद साहब नोमानी जो हमारे हम सब के जो बड़े हैं, वहाँ से जो फैसला आएगा उसके मुताबिक तमाम उलमा जो है तो उस पर मुत्तफिक रहेंगे, इस बात का अज़्म किया गया था 13 तारीख के दिन। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा उस पर मुत्तफिक भी थे और है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मौलाना फिरोज साहब ने अभी अभी तफसील से पूरी बात बता चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बात अल्हम्दुलिल्लाह 100% पूरी सही है। लेकिन बीच में ये देखा जा रहा है कि चंद लोग रहकर वो अपने आप को ऑल इंडिया और ऑल उलमा कह रहे हैं। ये सब गलत बातें हैं, इनका आप सब जो है तो सोच समझकर और हकीकत को जानकर जो है तो अपना फैसला लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि नांदेड़ जुनूब से मौलाना सज्जाद साहब नोमानी ने जिनका नाम लिया है हमारे फारूक अहमद भाई साहब, वो उस पर हर एक का इत्तेफाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जो है तो वोट तकसीम, हर शख्स ये चाहता है कि भाई वोट तकसीम ना हो। आज के जो हर शख्स ये चाहता है कि भाई वोट तकसीम ना हो, तो वोट तकसीम उसी सूरत में होंगे, तो वोट तकसीम नहीं उसी वक्त होंगे कि जब हम सब का इत्तेफाक एक जगह हो। सवाल है, जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ में है, उनके कई फॉलोअर्स भी है। अगर उन्होंने दूसरे उम्मीदवार को तायद कराने करते, इससे ऐसा नहीं हुआ कुछ मुस्लिम उधर देंगे कुछ मुस्लिम हो जाएंगे। जमात इस्लामी हिंद नहीं, उन्होंने किसी अगर दूसरे उम्मीदवार को तायद करते हैं बाद में, तो उसमें कैसा हो, कुछ मुस्लिम का इधर जाएगा कुछ इधर रहेंगे। उनके फॉलोअर ज्यादा मतलब महाराष्ट्र के अंदर नहीं पता हो तो ऐसा कुछ फैसला दूसरी में आता है, मुस्लिम को इधर बढ़ जाएंगे उधर बढ़ जाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं मसला। ये उलमा कराम जो भी फैसला किए हैं
ये बहुत सोच समझ कर फैसला किए, और जिन लोगों का नाम उन्होंने जाहिर किए है वो भी बहुत सोच समझ कर किए। और जहाँ से भी खबरें आ रही है हज़रत सज्जाद नोमानी साहब को सब लोग दुआएं दे रहे हैं, और उम्मत के वो लोग जो बज़ाहिर रहनुमा नज़र आ रहे थे और अंदर से कुछ मसाइल थे उनके, तो वो जो बातें ऊपर तक पहुंची और बादशाह तक बातें पहुंची कि वजीरों से क्या गड़बड़ियाँ हुई, क्या गलतियाँ हुई, तो वो उन वजीरों को ताल्लुक से उन्होंने उनको इग्नोर करे और 6 लोगों की रहनुमाई करे उन्होंने। उसमें गलती हो सकती है, नहीं, इंसान है, लेकिन उनका जहाँ तक ख्याल है हमसे अच्छा ख्याल है, उनकी जो सोच है हमसे अच्छी सोच है, और उनकी जो नज़र है पूरे महाराष्ट्र पर नज़र है। इस मुनासिबत से सज्जाद नोमानी साहब के ऊपर तमाम लोगों ने इत्तेफाक किया। एक मखसूस मीडिया इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसों को और जो मौलानाओं की तरफ से जो बयान आ रही उसको एक मखसूस नजरिए से जोड़ के देख रहा, हाँ, और इससे जो है इंतशार की कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आपकी क्या राय है? हाँ, सुनने में यह आया कि बाद ये बोले कि भाई ये फतवा आ गया, अरे फतवा देना कि इनको किसको हक, कौन हक दिया इनको। मैं पूछना चाहता हूँ भाई आपको स्टेज से बोलने का किसने हक दिया कि फलां को वोट दो, फलां को वोट दो? आपके तो हम सुनते हैं आज तक, आप ही के पीछे हम लोग चले। अभी पहली मर्तबा मौलाना सज्जाद नोमानी बेचारे इतनी मेहनत करने के बाद वो एक नतीजे पे पहुंचे, वरना तो अवाम अपने लीडर के पीछे ही दिया आज तक। उलमा कराम मुदाखलत नहीं कर रहे थे कैंप पर भी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोच समझ के उलमा कराम अपने जुबान का इस्तेमाल करते, अपनी सोच का इस्तेमाल करते। फतवा आप उसको उस वक्त बोलेंगे कि जब अगर पूरे के पूरे नाम अगर मुसलमानों के जाहिर करते आप, तो उस वक्त जो है उसको आप फतवे से जोड़ सकते थे, जबकि 23 या 30 लोगों के जो ये है नाम फतवा उसमें नहीं है। है, और याद रखना ये फतवा नहीं है, एक मुकम्मल उनकी एक राय दही थी, एक उन्होंने जो मुकम्मल लाही अमल मिल्लत है। के लिए जो है पेश की उन्होंने, बाकी इस पे कुछ भी नहीं है दूसरा। और हमेशा बोलते उलमा कराम रहबरी करो भाई, आप हमारी, आप रहबरी क्यों नहीं करते, क्यों भाई मस्जिद में आप जो क्यों नहीं बोलते बातें। लेकिन याद रखना अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मस्जिद में फतवा नहीं दिया गया, और ना ही किसी मस्जिद से खुसूसी ऐलान करने की किसी ने अपील की। एक हाँ, आमतौर पर यह ऐलान किया जाता है कि 100% वोटिंग करो, अच्छे आदमी को चुन के दो, पढ़े लिखे को चुन के दो, जो आपका हमदर्द हो, जो आपके सुख दुख में काम आता हो, ऐसे लोगों का इंतखाब करो। इस तरीके से गाइडलाइंस उलमा कराम देते रहते हैं, लेकिन फतवा नहीं देते कहीं पर भी। फारूक अहमद साहब के ताल्लुक से उलमा कराम ये ऐलान आने से पहले भी मुत्तफिक थे, और उनसे साथ सहानुभूति भी है, हमदर्दी भी है। उसकी 2-4 वजह थी जिसे हमारे सामने आई कि इंसान डेरिंग बाज है, मराठी जुबान पर उबूर है, और उनके साथ जो है दीगर कौमें भी उनके साथ में जुड़ी हुई है, और दीगर समाज के लोगों का अच्छा खासा वोटर उनके पीछे है। और हम इस बात नतीजे पहुंचे कि वनली सिर्फ मुसलमान किसी को वोट देता है तो वो चुनकर नहीं आ सकता, और एक जगह मुसलमानों का जमा हो जाना, इकट्ठा वोट देना, ये भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए कि हम लोगों के अपनी अलग अलग राय है, और उलमा कराम कभी भी पूरे मुसलमानों को कभी नहीं थोपे कि 100% वोट फलां को दो। अपनी अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि ये अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, बस। सज्जाद नोमानी साहब ने जो तायद कर, जिसपे आपने जो सवाल किया कि भाई ये फार्म कहाँ है और कौन से लेटर पैड पे है, तो उसका जवाब ये है कि एकता फार्म ऑल इंडिया उनके जो है क्या बोलेंगे उसको, एक ऑर्गेनाइज है, और उसके मातहत वो काम कर रहे हैं। उसी के तहत उन्होंने सर्वे करके उन्होंने लिस्ट जारी की। ये मीटिंग में सभी मसलक के उलमा कराम, हाँ हाँ, सभी थे। कितनी तादाद में? तकरीबन 500-200 हाँ 150 से 500 लोग थे, उलमा कराम थे। और फोटो इस वास्ते निकाले नहीं, वीडियो शो आप इस वास्ते करे नहीं, मीडिया को इसलिए बुलाए नहीं ताकि इंतशार न हो, और ये तकसीम से बचाने के लिए, वोटों की तकसीम नहीं होना। हर 40 साल से हम देख रहे कि हमारा एक MLA नहीं, एक आदमी हमारा कायद नहीं बन सका, और आखिर में जो है माल बढ़ जाता और वोट फूट जाते और घरे घरे रह जाते। इस चीज को रोकने के लिए उलमा कराम ने एक मीटिंग रखी थी। बहरहाल उलमा कराम न किसी खास मखसूस तबके से उनका कोई वो ताल्लुक है, मुखलिसाना तौर पर ये प्रोग्राम रखा गया, और खाने का इंतजाम भी हमने फारूक भाई से ले लिए, माफ करना ना, अभी तक चाय पिए सही अल्हम्दुलिल्लाह।